السلام علیکم۔ حسن علی ٹی وی کے معزز ناظرین، میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن علی ٹی وی۔ آج کا قصہ معزز ناظرین حضرت علی کے ہی متعلق ہے، تو چلیے ہم اپنے ٹاپک کے مطابق آغاز کرتے ہیں۔ حضرت علی کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور یہ یہودیوں کی جماعت جانتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہیں تو حضرت علی اس کا دروازہ۔ یہ اپنے طور پر سوچ کر آئے تھے کہ کسی طرح ہم نے حضرت علی کو علمی بنیاد پر شکست دے دی تو اس پر بہت غلط اثر پڑے گا۔ یہودیوں کی اس جماعت نے منصوبہ بنایا کہ جو بھی ہم سوالات پوچھیں گے وہ قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب تورات سے کریں گے۔ یہودیوں نے کہا کہ بس حضرت علی ہمارے سوالات کا جواب دینے کے لیے رضامند ہو جائیں تو بس ہم جیت گئے، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا اور جب ہم تورات سے سوال پوچھیں گے تو ان کے جوابات بھی تورات سے ہی لیں گے، تو پھر بھلا وہ کیسے دے سکیں گے، مطلب جواب نہیں دے پائیں گے۔ ایک شخص روایت میں ہے کہ ایک شخص جس کا نام راس الجالوت تھا، اس کی قیادت میں یہ وفد حضرت علی کے پاس آیا، کہنے لگا اے حضرت علی، ہم نے آپ کو علم کا شہر بہت سنا ہے، ہم آپ سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں جو ہم تورات سے کریں گے اور ان کے جوابات بھی تورات سے ہی لیں گے، اور اگر آپ نے ہمارے تمام سوالات کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی مسکرائے اور فرمایا تم جہاں سے چاہو سوالات کر سکتے ہو اور تمہارے تمام سوالات کے جوابات دینے کو تیار ہوں۔ اور حضرت علی نے بھی ان سے فرمایا کہ اگر میں تمہارے سارے سوالات کے جوابات دے دوں تو کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ تو اس پر یہودیوں نے آپ سے کہا کہ بالکل ہم سب اسلام قبول کر لیں گے۔ یہودیوں نے یہ سوچ کر آپ کی شرط مان لی کہ چونکہ سوالات کے جوابات دینا ممکن ہی نہ ہوگا تو اسلام قبول کرنا بھی نہیں پڑے گا۔ تمام لوگ جمع ہو گئے اور بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ ان سب یہودیوں کا عالم جس کا نام راس الجالوت تھا اپنے سوالات کرنے سے پہلے ہی فاتحانہ مسکرانے لگا کہ آپ ان کے جوابات نہ دے پائیں گے۔ بے وقوف بھول گئے کہ سامنے فاتح خیبر بیٹھا ہوا۔ یہودی عالم نے ایک بار مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں پہلا سوال کیا۔ یہودی عالم نے آپ سے پہلا سوال کیا اے علی، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ سوال سنتے ہی مجمع کا ہر فرد گہری سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جناب حضرت علی نے فرمایا کہ تیرا سوال ہے نا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو اللہ کے لیے نہیں ہے، تو وہ جان لو کہ وہ شرک ہے۔ کہا پاک ہے وہ ذات جو وحدہ لا شریک ہے۔ دوسرا سوال، یہودی نے آپ سے دوسرا سوال پوچھا اے علی بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں خدا ہے؟ تو آپ نے فوراً فرمایا کہ خدا ہر جگہ ہے۔ تو اس پر یہودی نے آپ سے کہا کہ نہیں، آپ جواب ہماری کتاب سے دیں۔ تو اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے نے کہا عرش سے۔ آپ نے کہا کہ عرش سے کہاں؟ آپ کے پاس 7ویں آسمان سے آیا ہوں۔ دوسرا فرشتہ آیا تو اسے پوچھا تو فرشتے نے فرمایا کہ میں زمین کے 7ویں طبق سے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا کہ 7ویں آسمان میں تمہارے سب سے قریب کون ہے؟ تو فرشتے نے کہا میرا رب ہے۔ اور دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ زمین کے 7ویں طبق کے نیچے سب سے زیادہ تمہارے قریب کون؟ اور اس پر دوسرے فرشتے کا بھی یہی جواب تھا کہ میرا رب۔ تو پس معلوم ہوا کہ خداوند تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ جواب بھی آپ نے تورات سے دیا۔ یہی وہ موقع تھا جب حضرت علی نے فرمایا کہ پاک، یہی معلوم ہوا کہ خداوند تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ جواب بھی آپ نے تورات سے دیا۔ یہی وہ موقع تھا جب حضرت علی نے فرمایا کہ پاک، یہی وہ موقع تھا جب حضرت علی نے فرمایا پاک منزہ ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں۔ تیسرا سوال، کہا کہ بتائیں کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اللہ سراپا حمد ہے، اس سے کوئی غلط بات منسوب کی ہی نہیں جا سکتی، وہ ہر برائی، ہر عیب، ہر خطا سے پاک۔ آپ نے فرمایا ظلم وہ چیز ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، وہ میرے رب سے قریب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حقدار کو اس کا حق دیتا ہے اور کوئی بھی ساری عمر اگر گناہ کرنے کے باوجود اللہ کے دربار میں توبہ کر لے تو اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ ظلم میرے رب کے قریب نہیں ہے، بہت دور ہے۔ راس الجالوت نے پے در پہ شکست کھانے کے بعد اپنی حکمت عملی اور اب یہ علمی سوالات کی بجائے تاریخی سوالات کی جانب رخ موڑنے لگا اور بڑے تکبر سے اپنا چوتھا سوال پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ وہ کون سا چشمہ ہے جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا اس کو چھوڑ
छोड़ो, पहले मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे दिल में क्या है। तुम्हारे दिल में यही है ना कि वो चश्मा जो बैतुल मक़दस के एक चट्टान के नीचे है। यहूदी आलम हैरान और परेशान हो गया और मुंह से बे अख्तियार बोला, हाँ। हजरत अली ने फरमाया, आज अपनी इस्लाह कर लो, पहला चश्मा वो नहीं है जिसके बारे में तुम लोग जानते हो, बल्कि पहला चश्मा वो है जिससे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, और ये वही चश्मा है कि जिससे आबे हयात जारी है। यहूदी आलम ने पांचवा और तारीखी सवाल पूछा, ए अली बताएं वो कौन सा पहला पत्थर है जो आसमान से उतारा गया। आपने फरमाया यकीनन तुम्हारे मुताबिक पहला पत्थर बैतुल मक़दस में नस्ब वो पत्थर है जिसके बारे में तुम्हारा अकीदा है कि वो नस्ब किए जाने वाला सबसे पहला पत्थर है। लेकिन तुम ये बात क्यों भूल जाते हो कि खाना काबा बैतुल मक़दस से कई कदीम है और हजरा अस्वद उसी वक्त आसमान से नाजिल करके नस्ब किया गया था जब खाना काबा तामीर किया गया था। वो है पहला पत्थर। गोया इस्लाह भी हो रही है साथ साथ। यहूदी की ये जमात अब मखमसे में पड़ गई और कहने लगी कि हम तो सवालात के जवाबात लेने आए थे, बल्कि हजरत अली पहले हमारे सवालात के जवाब नहीं बता रहे। पहले वो बातें बताते हैं कि जिन पर हमारा अकीदा है और फिर उन बातों की नफी करते हैं, मतलब दुरुस्त जवाबात बताते हैं और इतने दलील से बताते हैं कि हम सब में से किसी के लिए इनकार करना मुमकिन ही नहीं रहता। यहूदी की जानिब से छठा सवाल किया गया और यहूदी आलम बोला कि बताएं कि वो कौन सी चीज है जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती है। हजरत अली ने फरमाया कि तुम अपने माहो साल पर गौर करो और खुद ही इसका जवाब मिल जाएगा। कहा गया कि कैसे? आपने फरमाया कि कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता, इसी तरह गुज़श्ता रात अगली रात से छोटी बड़ी होती है। फरमाया ये वो चीजें हैं जो बराबर नहीं है, और पूछा कि क्या कायनात में कोई ऐसी शय भी है कि वो जिंदा भी है और सांस भी नहीं ले रही। इस सवाल के साथ ही पूरा मजमा गौर व फिक्र के समुंदर में डूब गया। किसी को इसका इल्म न था, हर एक की नजर हजरत अली की तरफ है। फिर आपने यहूदी आलम को जवाब दिया कि तुम्हारी किताब में लिखा नहीं है कि सुबह जब निकलती है तो सांस लेती है, हालांकि सुबह ना रूह रखती है और ना ही जानदार है। अगला सवाल किया, ये बताइए कि जमीन का वो कौन सा मकाम है जहाँ पर सूरज की किरणें एक मरतबा तो कभी वहाँ नहीं पड़ी। हजरत अली ने फरमाया ये समुंदर का वो मकाम है जहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम गुजरी थी तो समुंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। गुजरते हुए सूरज की किरणें वहाँ पड़ी और उसके बाद सूरज की किरणें वहाँ दोबारा कभी नहीं पड़ी। नवा सवाल किया कि वो कौन सी चीज है जो हमेशा गायब रहती है और वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं। आपने फरमाया कि जो आसमानो जमीन है उसकी तरफ देखो, वो तुम्हें गायब नजर नहीं आएंगे और हमेशा हाजिर रहते हैं। मौत और जिंदगी को ढूंढो, उनके बारे में तुम कभी न जान पाओगे कि वो कहाँ हैं और कब आते हैं। यहूदी आलम ने हजरत अली के मुकाबिल खुद को बेबस पाते हुए 10वां सवाल किया और कहा कि वो कौन सी चीज है, बताइए कि वो कौन सी चीज है कि जिसका खालिक खुद अल्लाह है लेकिन अल्लाह इसके बारे में सवाल करता है। हजरत अली ने बगैर किसी वक्फे के एक के बाद एक जवाबात देना शुरू कर दिए। फरमाया हजरत मूसा के आसा का खालिक खुद अल्लाह ताला था और उसके बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल करने वाला भी खुद अल्लाह ताला ही था। कुरान मजीद का एक तर्जुमा है, ए मूसा ये तेरे हाथ में क्या है। अब सवालात बहुत तेजी से पूछे जाने लगे और यहूदी ने अपना फौरन 11वां सवाल किया। आपसे पूछना शुरू किया, कहा कि बताइए बैतुल्लाह का तवाफ जिनके अंदर हयात होती है वो करते हैं या वो करते हैं जो जिन हो मलाइका हो। क्या कभी किसी बेजान चीज ने भी कभी खाना काबा का तवाफ किया है जो जानदार ना हो। हजरत अली ने फौरन जवाब दिया, हाँ किया है। वो कश्ती नूह है कि तूफान के दौरान जब वो उस मकाम से गुजरी जहाँ पर बैतुल्लाह था तो कश्ती ने बैतुल्लाह के साथ चक्कर लगाए। बेजान चीज है और बैतुल्लाह का तवाफ किया। बस अब गुफ्तगू अपने पीक पर पहुंच रही है। यहूदी को लगा कि अब तो कोई बात ही नहीं बन पा रही, तो इन लोगों ने अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल किया और सोचा कि अब हम यकीनन कामयाब हो जाएंगे और कहा कि अब मैं कुछ सवालात पूछूंगा यके बाद दीगरे। आपने फरमाया पूछो सवाल। फरमाया पूछो सवाल और जवाबात का आगाज हुआ। यहूदी आलम ने कहा, ए अली वो कौन है, ए अली वो कौन सा एक है जिसका दो नहीं। आपने फरमाया अल्लाह एक है जिसका दो नहीं। पूछा कौन से दो हैं जिनका तीसरा नहीं। फरमाया दिन और रात है, दो हैं इनका तीसरा नहीं। वो कौन से तीन हैं जिनका चौथा नहीं। फरमाया लोह
कलम कुर्सी, 3 है इनका चौथा नहीं। पूछा कौन से 4 हैं जिनका 5वां नहीं? फरमाया तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। 4 हैं इनका 5वां नहीं। पूछा कौन से 5 हैं जिनका 6वां नहीं? फरमाया 5 नमाजें हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। 5 हैं इनका 6वां नहीं। पूछा कौन से 6 हैं जिनका 7वां नहीं? फरमाया जमीन और आसमान 6 दिन में पैदा किए गए, इनका 7वां नहीं। पूछा वो 7 बताइए जिसका 8वां नहीं? आपने फरमाया मेरे रब ने 7 आसमान बनाए हैं, इनका 8वां नहीं। पूछा वो 8 बताइए जिनका 9वां नहीं? फरमाया अर्श। फरमाया अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है और इनका 9वां नहीं। पूछा 9 बताइए जिनका 10वां नहीं? आपने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े काफिर सरदार थे जिनका 10वां नहीं। पूछा वो 10 बताइए जिनका 11वां नहीं। जैसे जैसे सवालात पूछे जा रहे थे और इनके मुकम्मल जवाबात मिल रहे थे तो मजमे में एक अजीब सी कैफियत तारी हो रही और वो यहूदी आलम सोच रहा है कि ये मामला कहां से कहां चला गया, लेकिन वो अपने सवाल जारी रखे हुआ है। पूछा वो 10 बताइए जिनका 11वां नहीं? फरमाया कि हज के मौका पर अगर कुर्बानी न हो तो 7 रोजे हरम में, 3 रोजे घर पर रखने का हुक्म है। फरमाया कि ये 10 जिनका 11वां नहीं। यहूदी आलम ने सवालात जारी रखे और सवाल पूछा कि वो कौन से 12 हैं जिनके 13 नहीं? आपने फरमाया कि साल के 12 महीने होते हैं, इनके 13 नहीं। पूछा वो 13 बताइए जिनके 14 नहीं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि उसमें 11 सितारे, सूरज और चांद को देखा, फरमाया ये 13 थे, इनके 14 नहीं। बस गुफ्तगू तमाम हो रही है नाजरीन, पूछा जा रहा है और आप जवाबात देते जा रहे हैं। लोग हैरान और परेशान होते रहे। अब लोगों में बैठे एक यहूदी ने सवाल किया। अब मजमे की अजीब सी सूरत हाल है। यहूदी ने सवाल किया, दुनिया में हर आदमी सोच कर जवाब देता है, आप ऐसे जवाब दे रहे हैं कि जैसे सारे सवाल और जवाबात आपको अजबर हो। इस पर हजरत अली ने जवाब में यहूदी से एक सवाल पूछ लिया। कहा ये बताओ तेरे हाथ में उंगलियां कितनी हैं? बोला 5। तूने भी तो बगैर सोचे फौरन जवाब दे दिया। यहूदी ने कहा या अली ये कैसी बात है, मुझे मालूम है कि मेरे हाथ की 5 उंगलियां हैं। मुस्कुराकर हजरत अली ने कहा कि मुझे भी ये सारे इल्म ऐसे ही अजबर हैं जैसे तुझे ये मालूम है कि तेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। इसके बाद रासुल जालूद ने अपने आखिरी 2 सवाल की। फरमाया आसमान और जन्नत का कुफल क्या है? आपने जवाब दिया कि शिर्क से उनके दरवाजे बंद हो जाते। यहूदी ने पहले आसमानों जमीन के ताले के बारे में पूछा। क्या है कि ताला है शिर्क। यहूदी ने अपना आखिरी सवाल पूछा, बताइए कि उस ताले की चाबी क्या है? जिस पर हजरत अली ने फरमाया कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क है, उसकी चाबी इश्क का इब्तदाई इजहार कलमे से होता है। हजरत अली ने कलमा पढ़ा। जैसे ही हजरत अली ने कलमा पढ़ना शुरू किया तो सारे मजमे और तमाम यहूदी आलम रासुल जालूद समेत तमाम दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।